Hi friends, welcome to my channel. There's only a few minutes to 7, so I just witnessed when I was closing my window at living room, I saw the sunset which looks exactly like sunrise. I know this lipstick is not matching, this red is not matching with this red. I just tried it because see, when I wear red on any of the this outfits, the features are enhanced, you know, and when I use some other lipstick shade, it looks different. Especially with turquoise and all that, I should be using pinkish, lightish kind of lipsticks. This is my third cup of herbal tea. Herbal tea, it's a lifesaver. पंखे को क्या हो गया, देखो ना कितना स्लो चल रहा है. I'm just having these biscuits. In the morning, which biscuits I had? Milk Bikis. This is Britannia's coconut. ये तो मैंने फेब में लाया था शायद से. Coconut cookies. I like the Sri Lankan cookies also. The coconut. I don't remember the brand. Very nice. These bangles, these Ghungru bangles have become a trademark with me. I just love them. I cannot think of any other accessories. My ring and my Ghungru bangles, they just go well with everything. Huh? एक महीना हो गया. Half the month is gone. All these mosquitoes will come inside. Oh God. My enemies were feeling better. They thought that I'm suffering. They thought. There's nothing, I mean, it's always okay to think because it's one's brain. ऐसा लगता है ना, I was just existing. You know, I don't know how many people feel that they are stuck or they are on autopilot. If you all are feeling the same, please let me know. Because I used to feel that. I used to feel लगातार I'm stuck, I'm on autopilot. Even when I was working, I used to feel I'm like a robo. मतलब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, बस यही जॉब करनी है, चीज़ें खरीदनी है, बस यही है. और रिलेशनशिप के नाम पे बस यही ऐसी चीज़ें हैं. व्हाट्स माई लाइफ ऑल अबाउट. और ये पंखा देखो ना, वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में चलता है ना, वैसा वाला पंखा है ये. आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट शॉर्ट सर्किट ना, सो बिजली नहीं थी, बीच में बिजली चली गई थी. आई एम ग्लोइंग. इसके टाइप का ही लिपस्टिक पहनती तो और भी अच्छा दिखता. I'm just in a casual mood.
You know, I used to feel I'm stuck. I'm on autopilot and life is not moving. And I used to think कि बाकी की पूरी दुनिया enjoy कर रही है और मेरी एक boring सी life है करके. Then I thought to myself, I think sometimes ये जो life होती है ना, जो stuck होती है ना, that is to protect us from other unwanted dangers. अब मैं बैठ के एनालाइज कर रही थी, मैंने बोला ये पूरी की पूरी पब्लिक एकदम नाकारा है, ये मेरे किसी काम की नहीं है. इमेजिन इफ़ आई वॉज इन टच, तो मैं लोगों को सिर्फ अपडेट देती फिरती, उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते, मैसेजेस अटेंड करने पड़ते, एक ऑब्लिगेशन होता मुझे. आई होप यू अंडरस्टैंड. So instead of being peaceful, I would be totally under stress and I would have lost my mind completely, because constantly there would be gossips and constantly there would be communication जो कि जिसकी वैल्यू 10 पैसे की भी नहीं है. जैसे मैं अपनी बिल्डिंग के लोगों के साथ भी एज ए सेड, पहले हैज़ टू लिटरली स्टैंड एंड वो फीमेल्स के साथ मैं गप्पे लड़ाती थी. पिछले 1 साल से तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है. सिर्फ एक बार मैं आधा घंटा खड़े रह के वो एक हाउस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिविजिट एंड सी कि मैं क्या बातें क्या कर रही थी इनके साथ. द ब्रेन ऑफ अ डोर नॉब. You know, stop compare. I want to tell these women, don't compare yourself, don't compete yourself with other people. तुम लोग की बैकग्राउंड्स, तुम लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर इतना अशेम्ड मत हो जाओ. जो है सो है, जो है सो है. डोंट कंपेयर, डोंट कम्पीट. चाहे वो तुम्हारे सिबलिंग्स हो, नेबर्स हो, कलीग्स हो, तुम उनके साथ कम्पीट मत करो. रिलेटिव्स है, उनके साथ कम्पीट मत करो. तुम थक जाओगे, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे. अभी मुझे देखो, मैं दिखती कितनी स्टाइलिश हूँ और मुझे खाना बनाना आता है. मैं गुड हाउसकीपर यू कैन से. ओके ठीक है, अभी ये ऐसा पड़ा हुआ है, बट जनरली आई अभी ये देखो ना, आई यूज़ टू हैव एन OCD. मुझे हर चीज़ नीट एंड नाइस चाहिए थी. ऐसे पर्टिकुलर थी मैं. एंड मेरी ज़िंदगी पूरी टॉपसी टवी हो गई है कि नीट एंड नाइस तो दूर की बात है कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं था. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम अ पर्सन हु लव्स मिनिमम स्पेस. जब मेरे घर में अनवांटेड चीज़ें होती थी, मुझे इतना इरिटेट होता था. मैं किचन में जाती थी, मैं इरिटेट होती थी. दुनिया भर के बर्तन, अनवांटेड चीज़ें, कुछ नई चीज़ लाने का मन भी नहीं करता है. सिर्फ कढ़ाई एंड दैट पैन विच आई गॉट 1700 एंड सम स्टील के बर्तन and cups. Again I have to go and get one nice ceramic mug for myself, first class wala, which I will do from DMart. मैं ये जिस दिमाग में सोच रही हूँ, मेरी बिल्डिंग में एक बुढ़िया है. अगर वो लुढ़केगी तो उसमें 2-3 हिस्सेदार है उस फ्लैट में. एक तो ऑफ कोर्स NRI है, तो आई डोंट नो वेदर ही विल बी बॉदर्ड और नॉट. द डॉटर इज़ लिविंग नियर बाय, अनलेस एंड अनटिल शी क्लियरली मेंशंस कि ये पूरा बेटे के लिए जा रहा है. The beta is Shana. He never got anything transferred to his name because he wanted to save the taxes. Handy, I would be like, don't be such a chindi. मुझे अपने मार्क्स से भी घर खरीदना था. मैं एक एग्जाम्पल कि you want to just get rid of the other parties. And this person, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो he could have done this. But see, कंजूसी की हद तो देखो. That lady has sons. The daughter, the son has a mentally unstable beta. So I'm just saying कि प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं. This old lady has lots of assets, lots of gold, lots of asset. कभी कभी इतना गोल्ड पहन के घर में बैठी रहती थी. अभी भी घर में बैठी है with all her gold. Seriously, गोल्ड पहन के बैठी रहती है.
से एडी मेंटल लोग भी हैं। सो ये मत सोचो कि व्हेन इट कम्स टू एसेट्स एंड ऑल, लेडी बाहर नहीं आती है, वो ओल्ड लेडी घर से बाहर नहीं निकलती है, कहीं नीचे गिर जाएगी तो बीपी है। मैंने बोला बस घर में बैठ के खाना बनाती रहती है। हाउ स्टूपिड इज दैट? इतनी करोड़ों की संपत्ति है इस लेडी के पास, कैसे कैसे लोग रहते हैं। Lots and lots of mosquitoes have come in. So when it comes to property, I would seriously sit down and request the senior citizen, तुम्हें जिनको देना है दे दो, जिनको नहीं देना है उनका क्लियरली एक पेपर बना दो, वील बना दो, जीते जी बना दो, रजिस्टर करो उस वील को, और उसको एक विटनेसेस रखो। तुम्हारे चमचों को रखना है तो रखो, लेकिन जनरली एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल पार्टी को रखोगे तो अच्छा है। कोई एक ट्रस्टवर्दी नेबर होना चाहिए, एक फैमिली फ्रेंड होना चाहिए। रिलेटिव्स को ना ही रखे तो बेहतर है। अगर रिलेटिव एक फैमिली फ्रेंड, एक रिलेटिव एक नेबर, ऐसा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में करके एक दो विटनेसेस को, 2-3 विटनेसेस को रखो, अपनी एक व्हील बना दो। वाई आई एम टेलिंग दिस, वाई आई गिव दिस एग्जाम्पल। अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ मतलब दैट लेडी हैज़, फिर भी कैसे यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं, आई डोंट नो कैसे रहते हैं ये लोग, हाँ, कंजेस्टेड स्पेसेस में, जब इनके 2 बेडरूम्स के 2 3 फ्लैट्स रहते हैं। सीरियसली बीमारियों से लथपथ, इतना मेडिसिन खा खा के पूरे उस डॉक्टर को करोड़पति बनाते हैं ये लोग। सो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेरी हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने इस बंदी को भी 1000 बार बोला था, मैंने इनिशिएट भी किया था कि तू यू डू थिंग्स ऑफिशियली, कि कल को कुछ भी हो जाए देयर आर ऑफिशियल पेपर्स, इट्स रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे कितना चीटिंग, फ्रॉड, चोरी चकारी हुई, कुछ कर पाई मैं, क्योंकि आग लगी थी, आग लगने के 4-5 दिन के बाद ये ऑफ हो गई, तो इन व्हाट काइंड ऑफ मेंटल कंडीशन विल आई बी? क्या मैं चीज़ें छुपाती फिरूँ? कहाँ छुपाऊँ, कितना छुपाऊँ? मैं भटकती थी पागलों की तरह रास्ते के ऊपर, ना खाना खाती थी, ना सोती थी, ना पानी पीती थी। आई हैड बिकम टोटली, आई हैड लॉस्ट माई माइंड अराउंड दिस टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च। आई यूज़ टू वॉक 10 किलोमीटर्स, रात को भटकती थी, मॉर्निंग में भटकती थी, मैं भटकती थी। और दिस फकिंग बिचेस, आई कांट टेल यू, ये घर के अंदर बैठ के पूरा छानबीन कर रहे थे, ये वो सब कर रहे थे, पूरी चोरी चकारी की, ऊपर से तहस नहस करके छोड़ दिया। देन दे हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड से कि हमें मम्मी की साड़ियाँ चाहिए, जबकि पूरा सफ़ा चट करके द बेस्ट ऑफ थिंग्स दे हैव टेकन। भिखारी कहीं के। भैंचोद वाला कमिंग ऑल द टाइम, एक फोटोग्राफ्स लेने के बहाने में आ गए, आई वांट टू टेक माय चाइल्डहुड फोटोग्राफ। चूतिया, देन व्हाट वर यू डूइंग लास्ट टाइम? यू ऑल वर डूइंग द सेम थिंग। एक बहाना था घर के अंदर आके देखने के लिए, घर के मेरे साथ बहसबाजी करने के लिए। वी आर द लीगल नॉमिनीज। चूतिया, लीगल नॉमिनीज, पेपर्स मैंने ही बनाए थे। वी आर द लीगल नॉमिनीज होने से कुछ नहीं होता है। You can nominate anybody, but वो officially who is the handler, who we all want to give। तो ये जब पेपर्स ऊपर कैसे तो भी होते हैं ना, लॉट ऑफ पीपल कैन मैनिपुलेट। जो ये भैंचोद ने, वाई डिड दे रॉब द पेपर्स सो दैट दे कुड टेयर द ओरिजिनल पेपर, मेक अ न्यू पेपर नॉमिनेशन का, और इनका नाम जोड़े। सीरियसली दे वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये नॉमिनेशन के चक्कर में मत रहो तुम लोग। ऑफिशियली बैंक अकाउंट्स भी ऑफिशियली बोलो कि आफ्टर माई डेथ इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू दिस पर्सन, एंड पूरे बोलो कि लीगली ट्रांसफ़र या तो उनको जॉइंट अकाउंट में कर दो, एंड देन से ट्रांसफ़र आफ्टर माई डेथ इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू दिस पर्सन। ये ऑफिशियली लिख के ले लो, क्योंकि ये लीगल ज्ञान तुम लोग को कोई देगा नहीं है और तुम लोग को मिसलीड करेगा। तुम लोग के जो भी फेवरेट्स है, जो भी है, तुम लोग ओपन रखो उसको।
अगर कोई ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ रहा है, उनको बोलो कि अगर बहुत सारे पैसे वाले हैं तो उनको बोलो कि भाई तुम्हें ख़रीदना है तो मिल बांट के तुम्हें जो चीज़ खरीदनी है या अदला बदली करनी है, लेट इट बी इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। और आपको ये सरप्राइज़ भी रखना है कि मरने के बाद झगड़ा, जब जीते जी झगड़ा करें, सरप्राइज़ भी रखना है। तो वो नोटिफाई पीपल दैट द व्हील इज़ डन। ओके, कोई भी चीज़ छुपा के मत करो। अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेफ्टी रखो। सीनियर सिटीजन्स को मैं बोलती हूँ, पहले जीते जी लोगों को हैंड ओवर मत करो, अपने बच्चों को। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरे लिए कितनी तकलीफ हो रही है, जबकि ये आई शुड बी द सोल ओनर ऑफ दिस, बिकॉज लोगों ने सब चोरी चकारी करके सारी चीज़ें ले चुके हैं। आई कुड हैव ऑल्सो डन टोन दोज पेपर्स एंड ओनली पुट माई नेम। आई कुड हैव डन दैट। उससे कुछ नहीं होता है। नॉमिनेशन पेपर्स कैन बी चेंज्ड विद इन 5 minutes। फ्रॉडुलेंट पेपर्स भी बन सकते हैं इफ़ यू आर इन गुड टच विद द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी। एंड दिस फीमेल यूज टू ऑलवेज बी लल्लू चप्पू विद द सेक्रेटरी, बिकॉज वो हमारे कम्युनिटी का था और उसकी मम्मी इसकी फ्रेंड थी, नेबर भी है हमारी। तो मैंने बोला लल्लू चप्पू इसलिए कर रही थी कि लास्ट मोमेंट इफ़ शी वांटेड टू एलिमिनेट मी, शी कुड डू द चेंजेस वेरी इजली। आई होप यू अंडरस्टैंड। 5 मिनट का काम है, सो डोंट बी सो फुलिश कि हाँ भाई नॉमिनेशन में है। नॉमिनेशन से कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने घर के पेपर्स, इसका तो नाम भी बराबर नहीं था ऑन द पेपर्स, फ्लैट के नाम पे। इतना मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। सो गॉड इज़ ग्रेट कि मुझे इसलिए रिवॉर्ड मिला है क्योंकि मैंने एफ़र्ट डाले। मैं भी हाथ पे हाथ धर के बोल सकती थी ना मेरा क्या काम, मुझे तो शायद ही कुछ मिलने वाला है रोज़ी। मैंने अपना कर्तव्य किया एज अ एल्डेस्ट इन द फैमिली। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। उसके बाद आई जस्ट लेट इट बी। भैंचोतों के हाथ से वो भी निकल जाएगा जो इनके हाथ का है, वो हो जाता है। व्हेन यू हैंकरिंग, इट्स व्हाट बर्ड इन द हैंड इज व्हाट टू इन द बुश बोलते हैं ना। उसको संभालने के बदले हैंकरिंग फॉर समथिंग विच यू आर नॉट इवन इन दिस कंट्री। सो व्हाई आर यू हैंकरिंग एंड हसलिंग? फिर वो बहुत पनवती लगती है। आई थिंक सो ना, मे बी दिस पीपल बहुत सारे कर्जेस लेके घूम रहे हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ लुकिंग प्रॉस्परस एंड हैप्पी एंड पीसफुल, भिखमंगे लग रहे थे। दे वर लुकिंग लाइक दोज होर्स हु आर लाइक बेगर्स, मेंटली इनस्टेबल जो बेगर्स होते हैं ना, वैसे। सो मैं सीनियर सिटीजन्स को अगेन एंड अगेन बोलती, जो भी तुम्हारा एसेट है उसका लिस्ट बना के उसका टोटल सम ऑफ अमाउंट बनाओ। तुम्हारे जितने ऑफस्प्रिंग्स है या तुम्हारे जो बच्चे हैं, तो उनके किस किस को क्या क्या देना है, यू बी वेरी वेरी क्लियर। कभी द पर्सन इज़ वेरी पुअर, सिबलिंग्स में मिडिल क्लास है, पुअर है, मिडिल क्लास है, यूजलेस है, तो उसको क्या देना है, नहीं देना है, कितना देना है, क्या है उसका ट्रस्टी, ये सब तुम लोग पहले से ही ये करो। यू नो, यू वोंट बिलीव, यहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक, आई एम द विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। आई कुड हैव ड्रॉप डेड एनी मोमेंट। इतनी तेज़ काला जादू करते हैं लोग। मुझे कोई बोलते ना एक्स, मैं बोल रही हूँ आई डोंट नीड आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स भी करते हैं, बट ये आस्तीन के सांपों से मुझे, आई एम टेलिंग यू, मुझे 1% का भी भरोसा नहीं है। एक प्रॉपर्टी के लिए लालच में आके ये कुछ भी कर सकते हैं। सो अगेन एंड अगेन मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने एसेट्स को बचाओ। अपने एसेट्स या तो बेचो, जीते जी है तो बेचो, और जिनको जो जो देना है वो दे दो, और अपने लिए उतना रखो जहाँ तुम लोग अपने आप को मैनेज कर सकते हो। इतने सारे प्रॉपर्टीज़ रखने वो जी का झंझाल है। जहाँ से आपको एक रेंट मिलती है, आपका डेली मंथली एक्सपेंसेस, आपके जो यूटिलिटी बिल्स निकलते हैं, उतना एक प्रॉपर्टी रखो जहाँ पे तुम लोग का खर्चा निकल जाए। बाकी इतना छाती पे लेके मत घूमो। आई नो सो मेनी सीनियर सिटीजन
मैं अपने कैथलिक्स की ही बातें कर रही हूँ जिनके बच्चे NRI हैं और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी रहती है और वो बच्चे कभी आते भी नहीं है यहाँ पर। एक तो इनका पूरे का पूरा 7th फ्लोर पेंट हाउस था एक बुढ़ा बुड्ढी के, दे वर इन द 80s, वो खाली बंद पड़ा है। उसी बिल्डिंग में उनके आई थिंक वो टू फ्लैट्स प्लस अनदर फ्लैट, 3 फ्लैट्स एम्प्टी जस्ट लाइंग लाइक दिस। उसके ऊपर भी मे बी दे आर फाइटिंग ओवर इट, मे बी पॉसिबली हो सकता है बेटा बेटी। अनदर बुढ़ा बुड्ढी आई नो, ओके, NRIs, उनके सारे के सारे बच्चे और इतनी प्रॉपर्टी। सो व्हेन यू आर ड्रॉपिंग डेड व्हाट विल हैपन? तुम्हारा घर का जो कूड़ा, वो जो क्लटर है, वो क्या करेंगे उनका? ना बेच सकते, ना कोई खरीद लेगा। इतना सामान माल मसाला मत रखो अपने पास। अभी मुझे देखो कितनी तकलीफ़ हो रही है। व्हेन आई यूज्ड टू बेग हर कि इसका कुछ करेंगे, निकाल सामान, वो ज़िद में आके शी यूज्ड टू स्पॉइल माई नेम। और यहाँ पे पूरा अननेसेसरी सामान रहता था, अननेसेसरी चीज़ें। वो बिचेस वो एक एक चीज़ क्यों रखते हैं? सो दैट दे कैन कम इन एंड दे कैन से ओ वी हैव दिस थिंग। इतना सारा नॉनसेंस रहता था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मैंने बोला पनमतियों की चीज़ें रखनी क्यों है? जो है लेट देम टेक इट, इट इज़ माई हाउस। माय गॉड, रह जा, लिव इन द लिविंग रूम, बाथरूम में रह जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैंचोद, पीपल फाइट फॉर प्रॉपर्टी लाइक एनीथिंग। अगर उनके पास है तो भी फाइट करेंगे। सो अगेन एंड अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग प्लीज़ अपने पेपर्स का प्लीज़ ढंग से पूरे एसेट्स को यू मेक इट क्लियर। मैंने इसको काफ़ी बार बोला था, तुझे मुझे कुछ नहीं देना है ना, इट्स ओके, बट कीप योर पेपर्स क्लियर, बिकॉज मरने के बाद व्हाट आई मीन टू सेड, आफ्टर यू नो मोर यू विल पुट मी इनटू ट्रबल, यू विल लिटरली पुट मी इनटू ट्रबल। और वैसे ही हुआ, मेरी भविष्यवाणी लिटरली। सीधे वो चुराइंग द पेपर्स, बिकॉज उनके साथ दूसरे रिश्तेदार, दूसरे नेबर्स, दूसरे लोग मिले हुए थे, सो दैट दे कुड मैनिपुलेट द पेपर्स। कैन यू बिलीव दैट? एक पैसे का एक कुछ ये नहीं, पूरा मूवमेंट। कैन यू बिलीव? लोगों ने बैंक अकाउंट तक हड़प किया क्योंकि उस बैंक में शेयर्स थे मेरे डैड के। मैंने बोला ऊपर वाला है। लॉट ऑफ मस्कीटोज, और ये फैन भी बराबर से नहीं चल रहा है। सो दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट एंड ओके, माई चाय, बाय।